ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਦੀ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭਮੀਰੀ ਲਈ ਖੜੀ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੀਂਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੀਂਘ ਝੂਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। सो ये काम हमें करने चाहिए। इन्हें अपनाएं। अपनाएं का मतलब इनकी आदत बनाएं। जैसे ये आज का टाइम चल रहा है, इसमें ये आदतें बहुत ज़रूरी हैं। वैसे भी अपनी हर एक बच्चे की आदत उसे बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बच्चा एक खिड़की से सूरज दिखाई दे रहा है। सुबह जल्दी उठना, इसको क्या, इस तस्वीर को देख के हम क्या कहेंगे, सुबह जल्दी ਉੱਠਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ सुबह जल्दी उठना। और दूसरी तस्वीर में शरीरक अंगों को साफ करना, कहने का मतलब है कि रोज़ नहाना। ये दूसरी तस्वीर है, इसमें बच्चा एक नहा रहा है, तो हमें रोज़ नहाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और नहाना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो तस्वीर है, ये संतुलित भोजन खाना। हमें हमेशा संतुलित भोजन, जिस भोजन में सभी तत्व मौजूद हों, वो खाना चाहिए। भोजन हाथ साफ करके खाना चाहिए। और खाना खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोना। खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए और मुंह साफ करना चाहिए। और खाना खाने के बाद भी हमें कुर्ली वगैरह करनी चाहिए। और तीसरा है संतुलित भोजन खाना, तो हो गया हमारा। और इसके बाद अपना आसपास साफ रखना। हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, हमें आसपास की सफाई रखनी चाहिए। चाहे हम क्लास में बैठते हैं, चाहे अपने घर में बैठते हैं, हम जहाँ पढ़ते हैं, हमारा जो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, बेशक उसमें फर्श लगा है चाहे बिना फर्श के है। अगर बिना फर्श के है तो हमें झाड़ू मार के अच्छी तरह से पानी उस पर छिड़क के अच्छी तरह से बैठना चाहिए। और उचित दूरी पर बैठकर टीवी देखना चाहिए। कई बच्चे हैं जो वो टीवी के अंदर घुस जाते हैं, जैसे नेड़े नज़दीक होकर देखते हैं वो टीवी को, तो बाद में पता चलता है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी निगाह जो कमज़ोर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें उचित दूरी पर, उचित दूरी मतलब 10 फुट के करीब हमें दूर बैठकर टीवी देखना चाहिए। जैसे एक चारपाई होती है हमारी, पंजाबी 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ,
एक तरफ टीवी हो और दूसरी तरफ हम मंजे के बाद में बैठे हो, तो हमें उचित दूरी पर बैठकर उसे देखना चाहिए और उसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ानी चाहिए। हमेशा टीवी और एलसीडी जब हम देखते हैं तो उचित दूरी पर बैठकर देखना चाहिए। कम से कम 10 फुट दूरी पर हमें बैठकर देखना चाहिए। आगे है, इन्हें अपनाएं। क्या क्या हमें करना चाहिए? बड़ों का आदर करना। बड़ों का आदर करना का मतलब होता है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, सत श्री अकाल करनी चाहिए, उनके पाँव छूने चाहिए। तो ये बड़ों का आदर होता है, उनकी बात माननी चाहिए। अगर आपके माता पिता आपको पढ़ने को कह रहे हैं और अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो इसका मतलब आप अच्छे बच्चे नहीं हो। और आज से ही हमें आदत बनानी चाहिए कि हम अपने माता पिता की हर कही बात मानेंगे। बड़ों की सहायता करना, जैसे तुम्हारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी सहायता करो क्योंकि वो बूढ़े हैं, कुछ चीज़ वो मांगते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ला कर दो। जो वो कहते हैं उनकी काम में सहायता करो क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। और हर एक का फर्ज बनता है कि हम अपने बुजुर्गों का सत्कार करें और उनकी सहायता करें, इसलिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और तीसरा है अपने पास, छोटे बहन भाई के साथ प्यार करना। अपने छोटे बहन भाइयों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उनका उनसे प्यार करना चाहिए। कई बार हम जिद करते हैं कि हमारा छोटा जो बहन भाई होता है, हम बोलते हैं कि नहीं इसको नहीं देना, मुझे दो। तो हमें ख्याल रखना चाहिए वो हमसे छोटा है, पहले वो हम अगर उसको देंगे तो फिर वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। इस तरह से आप इस अच्छी आदत को भी अपना पाओगे कि हमें छोटों से प्यार करना चाहिए। और अपने दादा दादी के पास बैठकर और या नाना नानी से जब भी आपको समय लगे कहानी सुनना, तो उनसे कहानी सुनना चाहिए रात को। इसमें क्या होगा कि आपके दादा दादी से अब कोई भी बहुत सी कहानियाँ उनको याद होती हैं जो आपको सुना सकते हैं, वो सुननी चाहिए। आगे है जी आपके, दरवाज़ा खटखटा कर भीतर जाना। कहने का मतलब ये है कि हमें जब भी कहीं जाना है, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा एकदम से खोला और अंदर चले गए। आपको पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, और उसके बाद ही, ये अच्छी आदत है, उसके बाद ही अंदर जाना चाहिए। और अगली है धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपकी कोई सहायता करता है या आपको कोई चीज़ देता है खाने के लिए या पहनने के लिए, आपकी जान पहचान वाला, दूसरा नहीं कोई, उससे नहीं लेनी चाहिए। तो हमें वो चीज़ लेकर जहाँ उसने जो हमारे लिए किया है उसके बदले में हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी अच्छी आदतें और भी है। हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो ये सभी आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए। चलो आगे हम पढ़ते हैं फिर। जीव जंतुओं का अनोखा संसार, चिड़ियाघर में देखा कमाल। जे आप तस्वीर जो देख रहे हैं आपके सामने है, चिड़ियाघर में एक बंदर है जो वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। चिड़िया एक तो ऊपर बैठी है, इसके पेड़ के ऊपर एक उड़ के आ रही है। और नीचे के जो तस्वीर है इसमें हमें एक हाथी दिखाई दे रहा है, एक शेर है जो पिंजरे में है, और नीचे एक बगला है जो मच्छियाँ पकड़ रहा है। पानी में से मच्छी भी हमें दिखाई दे रही है, एक बत्तख है और एक मगरमच्छ है। ये सभी जो हैं चिड़ियाघर में हमें जानवर और पंछी है जो दिखाई देते हैं जब हम चिड़ियाघर में। वैसे भी आपने टीवी पे या स्क्रीन पे देखा होगा, कोई भी कहानी आपको याद भी होगी हाथी की या शेर की या बंदर की, वो सभी इसमें दिखाई दे रही हैं। और आगे आ गया, इन्हें सब मिलकर मनाएं। हाँ, जो हमारे देश में अलग अलग त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। ये पहली तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? कौन सा त्यौहार है जो हम सभी रल मिलकर मनाते हैं? ये है दशहरा। क्या है ये? दशहरा, जिसमें आपको रावण का पुतला, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का पुतला दिखाई दे रहा है, और रामचंद्र उनके तीर मार रहे हैं। ये दशहरे का त्यौहार है जब जो हम दिवाली से 20 दिन पहले मनाते हैं। सो दशहरा जो हमारे हमें सबसे मिलकर मनाना चाहिए। और आगे है दिवाली। दिवाली के दिन हम क्या करते हैं? अपने अपने घरों में दीपमाला करते हैं और मिठाइयाँ
लेकर आते हैं, पटाखे चलाते हैं और नए कपड़े पाते हैं। और अब बहुत से बच्चे हैं जो पटाखे नहीं चलाते, उसकी जगह पर वो बहुत कम पटाखे चलाते हैं और पौधे लगाते हैं। सो इस तरह से हमें दिवाली मिलजुल कर मनानी चाहिए। आगे आ गया अपने गुरुपुरब। जब हमारे गुरुओं के पुरब होते हैं, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जहाँ और भी गुरुपुरब जो सभी गुरुओं के आते हैं, तो हमें वो मिलजुल कर मनाने चाहिए। और एक आ गया क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को होती है। इसमें सेंटा क्लॉज जो बच्चों को अलग अलग तरह से गिफ्ट बांटता है, तो ये क्रिसमस भी हमें मनानी चाहिए। आगे है जी ईद। ईद जो हमारे देश में मनाई जाती है, तो ये भी हमें मनानी चाहिए। होली, ये सभी त्यौहार जो आते हैं हमें मिलजुल कर मनाने चाहिए। सो आगे आ गया आओ गुनगुनाएं। अब हम एक कविता है जो आपके सामने वो पढ़ते हैं, आप सभी ने मेरे पीछे पीछे बोलना है। चलो, नन्हे मुन्ने पहली कविता है हमारी, जो क्या कौन सी है वो, नन्हे मुन्ने। चलो बोलते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, मात पिता की आंख के तारे, हमसे है घर का उजियारा, खिल उठता है आंगन सारा, हमें कोई भी मारे ना, हमें कोई भी झिड़के ना, हम हैं फूल गुलाब के, सच्चे वीर पंजाब के। चलो सभी फिर एक बार पढ़ते हैं इन्हें। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, मात पिता की आंख के तारे, हमसे है घर का उजियारा, खिल उठता है आंगन सारा, हमें कोई भी मारे ना, हमें कोई भी झिड़के ना, हम हैं फूल गुलाब के, सच्चे वीर पंजाब के। तो ये थी नन्हे मुन्ने। आगे देखते हैं कौन सी है वो भी करते हैं। हाँ, तीन बत्तियां। ये सड़क पर हमें दिखाई देती हैं जब हम किसी शहर में जाते हैं, तो वहाँ चौक पे ये तीन बत्तियां हमें दिखाई देती हैं। ये बत्तियों का क्या महत्व है वो हम इस कविता के जरिए करेंगे। तो सुनो सारे बच्चे, तीन बत्तियां हमें बताती, आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है सभी बच्चों ने। सो ध्यान से बोलेंगे सभी। तीन बत्तियां हमें बताती, सड़क पे चलना हमें सिखाती, लाल बत्ती कहती रुक जाओ, कभी न आपस में टकराओ, पीली बत्ती कहती हो होशियार, चलने को सब हो तैयार, हरी बत्ती कहती अब तू चल, आगे आगे बढ़ता चल। चलो अब हम लय में गाएंगे इसके। तीन बत्तियां हमें बताती, सड़क पे चलना हमें सिखाती, लाल बत्ती कहती रुक जाओ, कभी न आपस में टकराओ, पीली बत्ती कहती हो होशियार, चलने को सब हो तैयार, हरी बत्ती कहती अब तू चल, आगे आगे बढ़ता चल। सो सभी ने ये तीन बत्तियों की कविता भी पढ़नी है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं आगे कौन सी कविता है जो, हाँ जी, वे भी बहुत अच्छी कविता है, तो सभी हम करेंगे। चलो, अपनी रेल। कौन सी कविता है ये?
अपनी रेल। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, आओ भाई खेलें खेल, छुक छुक करती अपनी रेल, सीटी देकर चलती रेल, कैसा है जे बढ़िया खेल। टिकट बिकट का काम नहीं है, लगता कुछ भी दाम नहीं है, स्टेशन आ गया रुक गई रेल, हुआ खत्म अब अपना खेल। चलो अब हम इसको लय में पढ़ते हैं। आओ भाई खेलें खेल, छुक छुक करती अपनी रेल, सीटी देकर चलती रेल, कैसा है जे बढ़िया खेल। टिकट बिकट का काम नहीं है, लगता कुछ भी दाम नहीं है, स्टेशन आ गया रुक गई रेल, हुआ खत्म अब अपना खेल। वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। फिर आगे है जी हफ्ते के दिन। कौन सी कविता है हमारे पास? हफ्ते के दिन। तो हफ्ते के दिन जो होते हैं वो 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। तो हम आगे पढ़ते हैं जी कविता। हाँ जी, हफ्ते के दिन। सुन लो बच्चों मेरी बात, हफ्ते के दिन होते 7, सोमवार को जाओ स्कूल, मंगलवार ना जाना भूल, बुधवार को पढ़कर आना, वीरवार को उसे सुनाना, शुक्रवार को याद करना, समय न तुम बर्बाद करना, शनिवार भी पूरा काम, रविवार को है विश्राम। तो ये हो गए हफ्ते के दिन। ठीक है, हफ्ते के दिन। सुन, अब हम इसको लय में गाएंगे इसी कविता को। चलो बोलते हैं सभी बच्चे। सुन लो बच्चों मेरी बात, हफ्ते के दिन होते 7, सोमवार को जाओ स्कूल, मंगलवार ना जाना भूल, बुधवार को पढ़कर आना, वीरवार को उसे सुनाना, शुक्रवार को याद करना, समय न तुम बर्बाद करना, शनिवार भी पूरा काम, रविवार को है विश्राम। तो ये सभी कविता है जो आप सभी बच्चे ध्यान से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला काम कौन सा है। ये भी बहुत अच्छी कविता है, अपना घर। ये सभी जो कविता है आपने मेरे साथ साथ बोलनी है, और जब आप बोलोगे तभी आपको याद हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी हैं। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस फोटो में? चिड़ियाँ हैं जो दिखाई दे रही हैं। चलो मेरे साथ साथ बोलोगे, सभी बच्चे तैयारी कर लो। चलो शुरू करते हैं। अपना घर कौन सी कविता है ये? ठीक है, शाबाश। चलो। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते, घूम घाम कर घर को आते, अपनी माँ को बात सुनाते, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो ये थी चिड़िया की, जो चिड़िया के बच्चे हैं 4 हैं जो घूमकर। इस कविता से हमें पता चलता है अपना घर हमें सबसे प्यारा होता है।
चलो हम लय में पढ़ेंगे इसको, सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ पढ़नी है। चलो शुरू करते हैं। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते, घूम घाम कर घर को आते, अपनी माँ को बात सुनाते। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। ठीक है बेटा। हाँ देखो कितनी अच्छी कविता है। चिड़िया देखो उड़ रही है, इसके चार बच्चे हैं, जो बैठी है चिड़िया, बच्चे उड़कर अलग अलग जगह पर जाते हैं, चारों दिशाओं में जाकर आखिर को अपने घर में आते हैं और अपनी माँ को बताते हैं कि अपना घर सबसे प्यारा है। चलो आगे आ गया झंडा। कौन सी कविता है? इसे बोलते हैं झंडा। कौन सा? तिरंगा झंडा। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, बच्चे झंडे के पास प्रार्थना कर रहे हैं। चलो झंडे की कविता सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ बोलनी है, जैसे मैं बोलूंगा साथ में आपने बोलनी है। बोलो सभी। तीन रंग का अपना झंडा, हम झंडा फहराते हैं, इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं, इसे देखते हैं जब हम सब, कितने खुश हो जाते हैं। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं। चलो ये हो गया। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं, सभी तिरंगे झंडे का, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय झंडा है तो इसे हम अपना शीश झुकाते हैं। चलो अब लय में गाएंगे झंडा कविता को। तीन रंग का अपना झंडा, हम झंडा फहराते हैं, इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं, इसे देखते हैं जब हम सब, कितने खुश हो जाते हैं। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं।